is a welding related, welding joints and welding symbols. Okay. Before going to start the session, we will understand what type of joints generally we are using in weldings. Generally, we are just seeing as a 4 types of joints or 5 types of joints as per the standard. In AWS, we are just 4 types. That is the butt joint, lap joint, T joint, and corner joint. As per the Indian standards, one more is added there. That is with the edge joint. Okay, I think everyone is know that. अभी ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट के प्रकार क्या होते हैं, इन्हीं सब जॉइंट को हम क्यों इम्पोर्टेंट रखते हैं? Because we are all working in the fabrication field. Fabrication is very much vast field. Because all the industries are using fabrication parts. Fabrication is nothing but joining up the metal pieces, joining up the rubber pieces, joining up the plastic pieces, joining up the other material pieces also, they are the part of the fabrications. But only the method is changed to join the material. I will say is a material. Material means is not especially like a category of metals. It means the material means number of theirs. But you just want to join there. If you join in a different shapes, so they will form there the joints. Okay. Now, as per the welding, the joints are 5: butt joint, lap joint, T joint, corner joint, and last one is the edge joint. Somewhere it will be considered, somewhere it will be not considered, because as per the standard wise. Okay. You know the joints. Joints are classified in 2 groups. That is with the weld groups. First one is the butt weld, and second one is the fillet weld. Butt weld is nothing but when we are going to join the 2 metal pieces or 2 edges of the 2 joint metal pieces. In between, if we keep the gap, and those joint will be formed, those weld will be formed, we will call as a butt weld. Okay. Butt weld ये ऐसा वेल्ड है जिसमें 2 प्रकार के पीसेस में या 2 जॉइंट में 2 या 2 से ज्यादा पीसेस में हम लोग गैप रखते हैं. अगर गैप रखना है तो वो बट वेल्ड हो जाएगा, अगर गैप नहीं रखना है तो वो फिलेट वेल्ड हो जाएगा. So what is the fillet weld definition is very easy. If we are not going to keep any gap between the 2 metal pieces and the joint will be formed, we will call as that joint is nothing but the fillet weld. Okay. So the fillet weld and butt weld, these are most important weld in our field as per the joints. Now we will see the nomenclature of the welding joints, because we should know where is the toe-up weld, where is the root gap, where is the leg length, where is the throat. This is the important parts in our symbolic representation also. Okay. Now I just started the welding joints. Not comes now the point of symbols, because symbols are within 5 to 10 minutes after I will take. So you can understand what are the symbols and why the symbols are important. Now the first you understand the joints, because joints are very important. Total welding fields, total fabrication field, whatever the items they are making, nothing but the joint will be formed there, like a T, like a lap, like a butt, or other shape is a edge joint we will call as a. Okay. So now I will show to you the PPT. In that PPT, the nomenclature of the welds. Okay. This is the basic types of joints and terms we will see that I will describe to you. The left side is A is a butt weld and B is nothing but the fillet weld. Okay, you know this sketch very well. You know that this drawing is very well. In this drawing, the butt weld are classified in a 9 types also, like a V,
single V, double V, single U, single U, single J, and then double J, double U like this. Okay. So this is one drawing is a butt welds in two plates, in two edges of the plates, gap is there. Where is the in between? I will just show here is a root gap. This one is a root gap. This is the root opening, root face, weld face, fusion zone, base material. This is the total angle, and this is the bevel angle, one plate angle and two plates angle. In this drawing, the root face and root gap is very important in butt weld because penetration part is there. When you will go as a drawing reading, they will not say to you how much the gap you want to keep there. They will just provide to you the one drawing. In that drawing, they just markings are there and numbers are there, either 10 mm, 6 mm or 5 mm, whatever the thickness of the plate. On that basis, or whatever the type of joint, on that basis, we will keep the gap or the penetration purpose. So this drawing will help us how to read the drawing. Where is the root face? Where is the root gap? Where is the bevel angle? Where is the fusion zone? So these things are here. So you know the very well the definition. Root gap is nothing but the दो प्लेट के बीच में जो गैप रखते हैं we will call as a root gap. अगर किसी प्लेट के ऊपर हम लोग कुछ शेप तैयार करते हैं, एनी टाइप ऑफ शेप, जैसे बट वेल में मैंने बताया, अगर मैं बिवेल कर रहा हूँ, अगर मैं वी कर रहा हूँ तो एक प्लेट का 30 डिग्री, बिवेल कर रहा हूँ तो एक प्लेट का 45 डिग्री एंगल. सो दैट bevel shape I will be make on the edge of the plates, and that plates is the one plate, or if you join the two plates, the full angle will be formed there. In the here they are just showing us. Okay, so you know. So this is the one joint or this sketch we will call as in our technical language. It's a nomenclature of welding joint. Number of times this type of drawing also comes, and they ask where is the root gap, where is the bevel angle, where is the fusion zone, where is the toe of weld. So you should be able to show this type of means you should be goes there and you write the right answer. You go and check where is the toe of weld, where is the root face, ABCD will because MCQ pattern will comes there, and they can ask the questions to you. There ABCD they will just nominate there, and what is the A part, what is the B part, like this like this type. Okay, I think you understand. Now second sketch we will see is a fillet weld. Okay, so in fillet weld, here the root, but what is the root? Root is nothing but the two edges are purely joined here, nothing gap. Nothing gap means I will call is a fillet weld, or it is the fillet joint. If welding completed, so weld will comes. If welding not completed, I will just take the like a joint. Okay, so this is the joint weld. So here is the weld size. This point to this point they are showing as the weld size, and this is the throat. When one plate point and second plate's joining points, this distance we will call as a leg length, and this one plate to other plate, if they are joining, we will call as a toe of weld. So this is the toe of weld, this is the fusion zone, this is the weld face, and this is the weld size. This is totally weld size. So in a fillet weld or in a butt weld, so these points will come everywhere. But in particular sketch, like a butt weld sketch, very easy to show the toe of weld, very easy to show the root gap. But in a fillet weld, very difficult to show the root gap because this is not purely see there, cannot seen properly. So these points are there. So understand the nomenclature. This is the drawing. It's a nomenclature of the welding joints. Okay. This is a rough, very important sketch. All the welder, all the welding instructor, all the welding engineers and supervisors. This is a common drawing. Everywhere comes. वेल्डिंग के कितने प्रकार के जॉइंट है और हमें एक स्केच में बता दो, तो ये हमारा स्केच है. ये में क्लियरली दिखाया हुआ है कि ये दो प्लेट में इन्होंने कॉर्नर जॉइंट करके दिखाया है, ये दो प्लेट में हमें लैप जॉइंट. रीड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट. So the left first is the corner joint, second is the lap joint, third is the T joint, and fourth is the
butt joint. Okay, so these are the joints is very important. Here they are not showing us the edge joint. Edge joint is the Indian standard only. So before going to start, I already talked with you. As per the AWS, as per the BS standards, or as per the DIN standards also, they are just say us the total types or classification of joints is nothing but the 4 joints. If the 5th joint comes, if the angle is not coming there, so we will consider it is in a edge joint. Okay, I think understand. Now the point is there, as a types of joint. This is the actual, they are showing us the joints. It's a figure. A butt joint, lap joint, T joint, आउटसाइड कॉर्नर ज्वाइन एंड एज ज्वाइन. अभी ज्वाइन में थोड़ा सा डेफिनेशन आपको मैं बता देता हूँ. बट ज्वाइन हम जिसे बोलते हैं, 2 प्लेट की एजेस सामने सामने रखी जाती है और उसमें किसी प्रकार की गैप रखी जाती है. वो गैप हो भी सकती है, वो गैप थोड़ी हो सकती है, नहीं के समान भी हो सकती है, लेकिन गैप रहती है, तो उस ज्वाइन को हम बोलते हैं बट ज्वाइन. लैप ज्वाइन इज नथिंग बट द 2 ओवरलैपिंग सरफेसेस ऑफ द प्लेट. 2 जॉब एक के ऊपर दूसरा ओवरलैपिंग हो रहा है, तो उस ज्वाइन को हम बोलते हैं लैप ज्वाइन. एंड थर्ड वन इज द टी ज्वाइन. एक प्लेट के ऊपर दूसरी जॉब की कड़ा, वो भी 90 डिग्री में रखनी है. एनीवेयर, नो नीड टू पुट द इन सेंटर और इन अ लेफ्ट साइड और राइट साइड. एनीवेयर the surface portion you take and you just put the edge of the other plates in 90 degree. The joint will be formed and that joint we will call as a T joint. Okay. Corner joint, 2 edges की प्लेट 90 डिग्री में जोड़ना, लेकिन कॉर्नर शेप में. 90 degree corner joint is also 90 degree, you see here, but the shape is formed there and that shape we will call as a corner shape. So it's a corner. And last one is they are showing us, already I talked, the edge joint. 2 edges को बेंड करके, वो सामने बेंड करके उसे जोड़ा जाता है. इस केस में ज्यादा से ज्यादा प्लेट 1 mm, 2 mm, 4 mm, 5 mm, 10 mm तक अंदर मटेरियल जा सकता है, उससे ज्यादा मटेरियल जाएगा नहीं. So that point of view, the other standards are not considered the edge joint in a joint types. Okay, so the edge joint is also one type of the joint. So जो ऊपर के 4 joints है वो हमें वेल्डिंग में इंपॉर्टेंट है. ये चारों joints के ऊपर हमारा पूरा वेल्डिंग डिपेंड है, पूरा वेल्डिंग क्षेत्र डिपेंड है, और उसी को हम लोग उपयोग में लाते हैं. ओके, सो these are the 4 joints. Now they are showing us the open corner joint and closed corner joint. अभी ओपन कॉर्नर जॉइंट मतलब यहाँ पे कहीं गैप रख दी है, और क्लोज कॉर्नर जॉइंट मतलब गैप रखी नहीं है. ये ओपन कॉर्नर जॉइंट्स we will consider is in the butt weld, and closed corner joint we will consider in a fillet weld. Understand? If gap is there, it's a butt weld will form. If gap is not there, the fillet will form. Okay, so this one is nothing but is a fillet weld. Now you just see in this the way figure, the 2 ways of the fitting up on a outside corner joints, like this one or like this one also comes. The shape of the joints are there. Okay, they are showing us. This is also one general case here. That will be the lap joint and T joint, and they just third one is the inside corner joint. In industries, very few places the inside corner joint are used. Generally, we just want to use the outside corner joint. Outside corner joint is nothing but the penetration point of view, or is the majboot or staying point of view. This the joint we are using. Okay, so there are the joints are here. Now here they are just showing us, this is the fillet weld कितना है, और उसका अगर हमें नापना है टो ऑफ वेल्ड वगैरह, this is one part of the fillet gauge, nothing but the size of the fillet determine. अभी ये joint में अगर आप clearly देख सकते हैं कि this part to this part also we will call as a leg length, this part to this part also we will call as a leg length. जितना part एक्चुअल में जॉब का वेल्डिंग हो रहा है, जितना पार्ट एक्चुअल में वेल्डिंग का पिघल रहा है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लेग लेंथ. तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये लेग लेंथ. ओके, देन दिस इज द टॉप वेल्ड, and how much the
job going to inside to metal the fuse, that is with the depth of fusion. job अंदर कितना जाके पिघल रहा है, so that part is the depth of fusion they are just showing us. And this is the part one is the throat. Actual line of the welding in a two weld pieces, and one center line will be passes in between, and that distance if you measure we will call as a throat distance, or same part we will call as a throat. Here they are just by length is the usual method of the specify and measure weld size. The effective throat is a more accurate measure of the fillet weld strength. वो ज्यादा मजबूत होता है, वो वही बता रहे हैं हमें एक्चुअल थ्रोट से. अगर ये छोटी सी आप ड्राइंग इस बाजू में देखते हैं तो एक्चुअल में एक्चुअल थ्रोट कहाँ पे था, इफेक्ट ऑफ थ्रोट कहाँ पे था, और वेल्डिंग कहाँ हो रहा था, या हमें आपको वो दिखाई दे रहा है. तो ये जब ड्राइंग यहाँ पे हमें बताता है कि ये लेग लेंथ और थ्रोट हमें इंपॉर्टेंट क्यों है, कि वेल्डिंग करते समय इन पार्ट को हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रखना पड़ता है, और वो ध्यान में रखते तब हमें उसका उपयोग वेल्डिंग करते समय यूज होता है. बिकॉज वेल्डिंग इज नथिंग but the joining of two metal pieces with the help of filler materials or with the help of extra materials, and the joint will be formed is a 100% strength is also required there. Okay, so that point हमें देखना जरूरी होता है. So this is one sketch is here. Now what is the main points are there? Some consideration in selecting a type of joint, use of fabrication. कुछ पॉइंट्स को हमें वेल्डिंग करते समय या फैब्रिकेशन में महत्व देना पड़ता है. वो क्या है? एक्सेसिबिलिटी फॉर वेल्डिंग. वेल्डिंग करते समय एक्सेसिबिलिटी मिलनी चाहिए. हम जॉइंट जो बना रहे हैं वेल्डिंग को जगह मिलनी चाहिए. वेल्डिंग अगर वहां जगह नहीं मिलेगी और हम कहाँ वेल्डिंग करेंगे, वो वेल्डिंग मजबूत आएगी या नहीं. दैट इज द पॉइंट ऑफ द एक्सेसिबिलिटी फॉर द वेल्डिंग. स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट्स. अभी स्ट्रेंथ ये जो पॉइंट है, हम पूरा वेल्डिंग का अगर काम करते तो वो किस पॉइंट को ध्यान में रख के करते हैं कि जॉइंट जो भी होगा वो मजबूत तैयार होना चाहिए. सो द स्ट्रेंथ इट इज रिक्वायरमेंट. एंड साइक्लिक और स्टैटिक लोडिंग. अभी थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट्स है और ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि जहां हम इंजीनियरिंग की फील्ड का उपयोग करते हैं कि जो जॉइंट तैयार हो जाएगा उसमें इतनी ताकत आएगी क्या. सो दिस इज द पॉइंट इज देयर. स्टैटिस्टिक लोड. लोड डिफरेंट है, इम्पैक्ट लोड है, स्टैटिस्टिक लोड है, फटीग लोड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स है देयर. which type of load will come on joint we also don't know. If they are providing the application of the joints, where to use this joint, so and if they say that this type of requirement and this type of strength is required, so that time we will be make the perfect joints. Otherwise as a simple matters we will cover and complete the weldings. Okay, so is very important. मटेरियल थिकनेस. जो आपकी थिकनेस भी इंपॉर्टेंट होती है, कहाँ हमें ज्वाइंट बनाना है और वो ज्वाइंट वो लोड ले पाएगा या नहीं. ज्वाइंट तो बनेगा लेकिन थिकनेस है या नहीं इज वेरी इंपॉर्टेंट. द मटेरियल थिकनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वन पार्ट इज देयर. नेक्स्ट वन इज द वेल्डिंग प्रोसेस टू बी यूज. अभी हर एक प्रोसेस में वेल्डिंग हम कर सकते हैं. ऑलरेडी लास्ट 2-3 लेक्चर्स मैंने कंप्लीट किए कि वेल्डिंग प्रोसेस में वगैरह बताया कि कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस है. हर एक में ज्वाइंट में ताकत वही आएगी क्या. अगर मैंने आर्क वेल्डिंग कर ली जिससे हम एसएमडब्ल्यू बोलते हैं, अगर मैंने जीएमडब्ल्यू कर लिया, अगर मैंने टिक वेल्डिंग कर ली, अगर मैंने एसएडब्ल्यू करवा लिया, अगर मैंने और कोई वेल्डिंग प्रोसेस सिलेक्ट करवा ली, तो इन हर एक प्रोसेस में वेल्डिंग जॉइंट की ताकत अलग रहेगी. द सिलेक्शन ऑफ द वेल्डिंग प्रोसेस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ऑन दिस सिलेक्शन इज डिपेंड ऑन द वेयर द joint will be used, what type of what is the thickness of material, and where to material will be going to the joint. That is the application point. On that basis we will select the process. Okay, understand this point. Material type. अभी मटेरियल टाइप इसका मतलब है कि ये फेरस मटेरियल है, नॉन फेरस मटेरियल है या अलॉयज मटेरियल है, क्योंकि ये सारे मटेरियल हम देख लेंगे और उसके बाद ही हम लोग सिलेक्ट करते हैं प्रोसेस. सो द मटेरियल टाइप एंड कोर्स रिक्वायरमेंट. लास्ट लेक्चर जब मेरा था तो उसी के ऊपर से वेल्डिंग स्टैंडर्ड्स एंड वेल्डिंग कोर्स. अभी कोर्स हमें क्या फॉलो करना है. जैसा अगर पाइप वेल्डिंग करना है तो 1104 पाइप वेल्डिंग का एपीआई तो नहीं मैं फॉलो कर रहा हूँ. अगर पाइप एंड प्लेट वेल्डिंग हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो मैं डीन तो नहीं फॉलो कर रहा हूँ, या और कोई एडब्ल्यूएस के स्टैंडर्ड्स तो नहीं फॉलो कर रहा हूँ, उसके कोर्स तो नहीं फॉलो कर रहा हूँ. सो द कोर्स रिक्वायरमेंट एज पर द कोर्स दे विल सेंड टू द एवरीथिंग ऑन द ड्राइंग. और सबसे लास्ट का पॉइंट है, ये सब हम प्रोडक्ट तो बना देंगे, ये सब आइटम्स हम तो बना देंगे, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी होगी. अगर कॉस्ट जो भी प्रोडक्ट जो भी इंडस्ट्रीज पहले प्रोडक्ट बनाती है वो पहले यही सोचती है कि जो मैं बना रहा हूँ मार्केट में बेचा भी जाना चाहिए. easy to sell it in the market, customer should be ready to purchase it. If the whatever the I am making the
part, whatever the making the items, his cost is more, so very difficult to buy for the customer. So that point is very important. जो भी मैं बनाऊंगा उसकी कॉस्ट जो रहेगी वो मिनिमम के इसमें रहनी चाहिए. अगर वो मिनिमम के इसमें है तो हमें ज्यादा तकलीफ नहीं देगी सेल करने के लिए. ओके, so that point is there. Now these are showing as the drawings. Here कुछ ड्राइंग दिखाया उन्होंने किस प्रकार से हमें ज्वाइंट देखना है. ये ज्वाइंट इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे कुछ ज्वाइंट्स है. अभी देखो वी ज्वाइंट है, सिंगल वी बताया है, डबल वी बताया, बराबर है. ये दोनों प्लेट में क्योंकि ये प्लेट की थिकनेस ज्यादा है इसलिए डबल वी करना पड़ा. जनरली हम लोग क्या सिलेक्ट करते हैं 15, 18, 20 mm तक या 16 mm तक सिंगल वी यूज कर रहे थे. उसके ऊपर more than the thickness of the material is the 16 or 18 mm, we are going to select the double V or double U, what type of shapes. Okay, so U shape, J shape, V shapes, bevel shape and square shape. These are all are the butt weld types. Okay, so the points are there. This is also very important because these points will come in our welding symbols also. What type of joint and what type of shape on the plate, like a V, like a U, like a J, like this. Okay. Name two types of the V as a preparation that are the recommended for the brace welding butt joints. अभी यहाँ पे ये सिंगल V बताया हुआ है और यहाँ पे डबल V बताया हुआ है. अभी ये जैसे ज्वाइंट्स आ जाता है तो ये ज्वाइंट्स हम लोग जब वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करते समय काफी पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं. अभी सिंगल वी है, 10 या 12 mm थिकनेस है और हमने वेल्डिंग करना है तो उसे 1 रन में कंप्लीट करना है, 2 रन में कंप्लीट करना है, 3 रन में कंप्लीट करना है, 4 रन में कंप्लीट करना है. और ये जब पॉइंट्स आएंगे ये क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. सिलेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड, सिलेक्शन ऑफ द फिलर मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ द फिलर वायर. अगर आप जेएमडब्ल्यू और जीटीडब्ल्यू से वेल्डिंग कर रहे हो, बिकॉज इन 2 run also completed the job, 4 run also completed the job. Point is there, how much the material you are going to apply in a single run, how much the material you are going to apply in the 2 runs or 3 runs is depends, because at the same time this much heat is going to input your jobs and that heat will be going to change your structure of the job also. And structure of the job is means what कि प्रॉपर्टीज में कुछ बदल आ जाएगा और प्रॉपर्टीज में बदल आ जाएगा तो समटाइम्स उसका ताकत भी कम हो जाएगा, स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू आई विल से, या समटाइम्स जॉब टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाएगा, वी विल कॉल इट द डिस्टॉर्शन. सो वो भी हो सकता है. सो द सिंगल वी डबल वी यहाँ पे वो दिखा रहे. तो नाउ दे आर जस्ट गोइंग टू शो अस हाउ टू कंप्लीट द जॉइंट. इज 1 2 3 इन द 4. सो 4 इज नथिंग बट द बैक चिप द रिक्वायर्ड. बैक चिप मतलब पीछे बाजू जाके आपको थोड़ा सा वेल्डिंग का जो पेनिट्रेशन आया है सही नहीं आया उसको घिस लो और पीछे से एक रन मार दो. अगर उस टाइप का रन की जरूरत है तो उसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं. सो दैट वन कॉल एज अ बैक चिप. एंड रनों की संख्या किस तरीके से होनी चाहिए कि जॉब को डिस्टॉर्शन कंट्रोल करने में हमें उसको मदद होनी चाहिए करके. ओके, सो नाउ दिस दे आर जस्ट शोइंग अस द बट वेल्ड जॉइंट कि हाउ टू हियर जॉइंट. सो दिस इज द वेल्डिंग जॉइंट एंड डिजाइन इज अ वेरी easy drawing. This one is also very easy key joints and which side we just want to weld it. हम लोग अभी वेल्डिंग सिंबल आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ, उसमें आपको ध्यान में आ जाएगा. ओके, नाउ द पॉइंट इज कमिंग हियर इज द वेल्डिंग सिंबल्स. इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम लोग वेल्डिंग में काम कर रहे हैं, अगर वेल्डिंग फील्ड में काम कर रहे हैं तो हमें वेल्डिंग सिंबल आना बहुत जरूरी है. हर एक ट्रेड में, इंजीनियरिंग के ट्रेड में या नॉन इंजीनियरिंग के ट्रेड में भी सिंबल्स यूज करते हैं. अभी सिंबल्स यूज करना है तो सिंबॉलिक लैंग्वेज अगर हमें यूज करनी है, अगर हमें सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज करनी है तो वो बहुत कुछ बता देती है. क्योंकि क्या जरूरी उस कारण में, why the symbols are important in the engineering field, why the symbols are important in the other field, because when we are going to out of countries, when we are going to the market and when we goes to the different countries, that time we are unable to speak in his language. Sometimes language problems will quit, sometimes communication problems will come, and that time only the one part is in our hand, that nothing but the symbol.
So the symbols many times called as symbols permit us to communicate ideas that are otherwise difficult to the communicate. So the symbols are the communicate to ideas. हमें जो बताना है वो बॉडी लैंग्वेज के साथ में और पिक्चर के साथ में अगर हम सब बता देंगे तो हम वो पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। वेल्डिंग में ही वही होता है, जब हम वेल्डिंग करने जाते हैं, किसी ने हमें ड्राइंग दे दी और आपको बोला कि ये कर दो करके, अगर किसी ने हमें प्लेट दे दिया और वो बताते रहे, हमें समझा नहीं, तो वो मिस कम्युनिकेशन हो सकता है। तो हमारे पास में वेल्डिंग सिंबल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंबल्स कन्वे द एंटायर कन्वर्सेशन वर्थ ऑफ द डेफिनेशन एंड कॉन्टेक्स्ट विद इन अ कंसाइज स्पेस। अभी ये जो हमें बता रहा है कि एंटायर कन्वर्सेशन, एक छोटा सा सिंबल हमें पूरी बात बता देता है। अगर ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा है, अगर उसको सामने एक रोड के ऊपर एक छोटा सा सिंबल दे देते कि स्कूल आ रहे हैं, आगे बड़ा टर्न आ रहा है या आगे बड़ा स्पीड ब्रेकर आ गया है, तो वहां पे लिखा रहेगा तो वो समझेगा नहीं, लेकिन सिंबल देगा तो एनी ड्राइवर फ्रॉम द, अभी लैंग्वेज तो हमारे इंडिया में अगर हम पॉइंट ऑफ नोट करते तो 18 से 20 लैंग्वेज हम लोग बोल लेते, लेकिन सब लैंग्वेज हमें आती है क्या? नहीं, हम 2-3 लैंग्वेज बोल लेते। कुछ लैंग्वेज हम बोल भी लेते हैं लेकिन वी आर अनेबल टू रीड इट। We know the language, we are able to speak, but very difficult to read it. So that time only the symbols are guide us, only the symbols are tell us how to do there, what are the there. So in our field, the welding, in engineering field also, the symbols are important. In these symbols, the drawing is a 3 parts there: arrow line, reference line on tail. तीन ही पार्ट है, तीनों पार्ट आपको ध्यान में रखना है। ये तीनों पार्ट में एरो, रेफरेंस लाइंस और तीसरा जो पार्ट है हमारा टेल। अभी ये पार्ट क्या बताएगा, मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा। टेल मतलब आपको कौन से प्रोसेस में और बाकी इसमें काम करना है। रेफरेंस लाइन मतलब आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट दिया जाएगा, और एरो मतलब किस साइड में जाके वेल्डिंग करना है। सो दीज आर द मेन 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन द वेल्डिंग एज अ वेल्डिंग सिंबॉलिक line or welding symbols, or in our welding trades nothing but the okay. So the point is there, this is the welding symbols. Now you see here in the welding symbols हमें क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है कि क्या साइज है वेल्डिंग का, कौन सा साइन दिया है, लेफ्ट एज अ बट वेल, एज अ फिलेट वेल, एज अ, और कौन सा जॉइंट वगैरह। सो दिस विल कम्स हियर। और नंबर ऑफ वेल्ड, कितना वेल्ड मारना है, 1 रन 2 रन, और लेंथ कितना रखना है, डिस्टेंस कितना रखना है, इंटरमीडिएट वेल्ड होना है, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन क्या है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दी। जैसे इसमें 3 सिंबल्स, एक एरो, दूसरा आपका रेफरेंस लाइन और तीसरा टेल। अभी ये बीच में की इसमें जो दिखाया हुआ है ये सारे पार्ट्स वहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। साइज ऑफ वेल्ड वहाँ पे आएगा, वेल्डिंग सिंबल वहाँ पे आएगा, नंबर ऑफ वेल्ड आएगा, कितनी जगह छोड़नी है, कितना इंटरमीडिएट वेल्डिंग करना है, और लास्ट में जो पॉइंट दिया जाएगा इन विच प्रोसेस यू वांट टू यूज at the time of welding. Okay, so the point is there, nothing but the just you see the symbols. अभी यहाँ पे एक सिंबल्स उन्होंने बताया हुआ है। अभी ये वेल्डिंग सिंबल, ये चॉप बता रहा है, ये गोल बता रहा है, यहाँ पे एक फिलेट वेल्ड का सिंबल्स बता रहा है कि ये सरकमफरेंस वेल्ड है, ये फिलेट वेल्ड है, और ये वेल्ड कंप्लीट करना है वगैरह। तो इस टाइप से ये थ्रोट थिकनेस है, ये आपको थ्रोट रखना है कि इतना टाइप का लंबाई का वेल्डिंग करना है। सो दिस थिंग दे आर जस्ट गोइंग टू अस द शेयर्स हियर एज पर द वेल्डिंग सिंबल। ओके, अभी ये सिंबल्स में आप थोड़ा सा देख लीजिए। अभी ये छोटा सा टी जॉइन उन्होंने दिखाया हुआ है। अभी ये टी जॉइन में अगर आप देखेंगे, ये सिंबल्स की लाइन है, ये टी जॉइन का सिंबल है, कॉन्वेक्स और कॉन्वेव की जगह आपको दिखाई दिया है कि आपको किस प्रकार से वेल्डिंग है, वेल्डिंग का लंबाई कितना होता है, कितना वेल्डिंग ब्रैकेट में छोड़ देना है आपको, दैट इज बी द स्पेस बिटवीन नॉट रिक्वायर्ड। तो उस टाइप से आपको वेल्डिंग कंप्लीट करना है। अगर एक साइड में वेल्डिंग करना है तो एक ही बाजू दिखा है, 2 साइड में वेल्डिंग करना है तो बेसिक सिंबल्स जो दिया है वो वेल्डिंग लाइन के या मतलब रेफरेंस लाइन के दोनों बाजू में दिया हुआ है। तो ये सिंबल्स हमें यहाँ पे देखने को आना चाहिए। अभी यहाँ पे थोड़ा सा आप देखोगे तो किस स्टैंडर्ड को उसने फॉलो किया है। अभी 111 इज अ वेल्डिंग प्रोसेस है, किस प्रकार की प्रोसेस से आपको ज्वाइन करना है, और यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रॉड्स कौन से यूज करने हैं, कौन सा स्टैंडर्ड यूज करना है, वो प्रोसेस से उन्होंने यहाँ पे एक बता दिया है। नाउ
यू जस्ट सी हियर द इंटरमीडिएट ऑफ द वेल्ड्स हमने कंप्लीट करना है, क्योंकि इतना लंबाई का वेल्डिंग करना है, इतना जगह छोड़ देना है, फिर वो पीछे बाजू आके दूसरे बाजू में वो साइड में वेल्डिंग हमें कंप्लीट करना है। सो द इंटरमीडिएट वेल्डर और अपोजिट वेल्डिंग और अपोज वेल्डिंग सामने सामने करना है, उतनी जगह छोड़ना है। सो व्हाट टाइप ऑफ वेल्डिंग इज रिक्वायर्ड, ऑल दोस थिंग्स विल बी शो हियर as per the welding symbolic representation. Now one dotted line is here in the welding reference line. अभी ये डॉटेड लाइन नीचे भी आ सकती है और डॉटेड लाइन ऊपर भी आ सकती है। डॉटेड लाइन नीचे आना और डॉटेड लाइन ऊपर आना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ता है कि बेसिक वेल्डिंग सिंबल अगर डॉटेड लाइन के ऊपर है तो आपका वेल्डिंग विरुद्ध बाजू में चला जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है, अगर रेफरेंस लाइन के ऊपर आपका वेल्डिंग सिंबल है तो एरो साइड में आपको वेल्डिंग आ जाएगा। सो द how to read the drawing is very important, so that point you should be keep it in your mind. So this where is the basic symbol is on the reference line or basic symbol is on the dotted line, huh? Okay, so the point is keep it in mind. अभी यहाँ पे कुछ एलिमेंट्री वेल्डिंग सिंबल दिखाया हुआ है जो हमारे ज्वाइंट के हिसाब से है। अभी अगर आप थोड़ा सा ज्वाइंट देखते हैं, ये ज्वाइंट्स में बट वेल्ड का सिंबल्स है। अभी एक बटवेल का सिंबल इन्होंने ऐसा आपको दो जस्ट कर्व दिखाया हुआ है, लेकिन वही स्क्वायर बट जब इनका सिंबल देखकर दो वर्टिकल लाइंस दिखा दिया है। ये वी का आपको एक सिंबल्स वहां पे दिखाई दिया है, एक बिवेल का सिंबल्स उन्होंने दिखाई दिया है। अभी ये वी का सिंबल्स और बिवेल का सिंबल मैंने पहले बताया, जब आपको ड्राइंग बता रहा था कि वी 30 डिग्री का एंगल आएगा, बिवेल 45 डिग्री का एंगल आएगा। सो दिस इज द स्केच शो अस इज द बिवेल जॉइंट एंड द बिवेल एंगल इज 45। सो दिस इज द सिंबल। अभी ये वाई जॉइंट आ गया, हाँ, यू आ गया, जे आ गया। सो दीज आर द बेसिक सिंबल्स, बिकॉज दिस सिंबल्स वी विल यूज इन द ड्राइंग पार्ट। बिकॉज कंपनी जब बड़ा पार्ट बनाती है, बड़ा कोई बॉयलर वेसल बनाती है, नंबर ऑफ छोटे छोटे पार्ट्स आ जाते हैं, नंबर ऑफ वेल्डिंग्स आ जाती है, नंबर ऑफ जॉइंट्स वहां पे तैयार करने पड़ते हैं, तो वो टाइम हमें ये सब देखना पड़ता है कि what type of shape we want to make on the particular edge of the plates, which plates we want to go into making the shape on that plates, where to send the or the grinding, where to send for the filings, or what type of shape will be do the by grinding or by machining or any methods of the edge of preparation. So this we will be used here. Okay, so these are the symbols. So these symbols are very important. Number of times they are asking to you in the exam also, what is the symbols, what is the name of the symbols. So you select the symbols, like this questions will come in your MCQ pattern. Okay, so the basic symbols are there. Now this is also continuing the symbols. अभी ये यहाँ पे आपको बैकिंग रन का सिंबल दिया हुआ है। बैकिंग रन का सिंबल्स कैसा है, हाफ सर्कल जैसा है और उसके ऊपर लाइन है। सो द बैकिंग रन, ये अभी फिलेट वेल्ड है, टी ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट भी बता सकते हैं, लेकिन ये राइट एंगल ट्राइंगल बता दिया, इसका मतलब क्या होगा, वो फिलेट वेल्ड का सिंबल आ गया। बाद में आपका प्लग वेल्ड का सिंबल या स्लॉट वेल्ड का सिंबल सबको दिखा दिया, मतलब ब्रैकेट बताया हुआ है, लेकिन वो 90 डिग्री वाला ब्रैकेट है, क्योंकि ब्रैकेट भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाला है। सो दिस इज द ब्रैकेट वेल्ड। गोल सर्कल आपको बताया गया, वो स्पॉट वेल्ड का सिंबल्स है। ओके, सो दिस इज द स्पॉट वेल्ड सिंबल्स। अभी वेल्डिंग करते समय वो क्या बताएंगे ड्राइंग में, वो एरो दिखा देंगे और वहां पे एक सिंबल लगा देंगे कि ये सर्कल है, ये ब्रैकेट है, ये ट्रायंगल रख दिया। तो हमें वो सिंबल्स पता होना जरूरी है, सिंबल्स की हमारी पढ़ाई होना जरूरी है कि व्हाट इज द सिंबल्स आर शोइंग, व्हाट टाइप ऑफ वेल्डिंग वी वांट टू कम डूइंग, व्हाट टाइप ऑफ वेल्डिंग वी वांट टू डू ऑन दैट पर्टिकुलर point. So the symbol will be shows. Okay, so drawing reading is very important here. Now this is the also one the seam weld, it's a resistance welding symbol, seam weld। एक सर्कल दिया है, उसके बीच में दो हॉरिजॉन्टल लाइंस दे दी है, तो ये भी एक सिंबल्स है। तो ये हमारे वेल्डिंग में खास करके 30-35 छोटे मोटे सिंबल्स आते हैं, वो हमें ध्यान में रखना जरूरी होता है। नाउ सप्लीमेंट्री वेल्डिंग सिंबल्स हमें बताया। अभी वेल्डिंग होने के बाद अगर हमें फिनिश करना है तो सिंबल, वो बेसिक सिंबल्स के ऊपर एक लाइन आ जाएगी, फिनिश द वेल्ड, जिसके रख दो ऊपर वेल्डिंग दिखना नहीं चाहिए, या वेल्डिंग बिट्स जो आएगा वो कॉन्वेक्स आएगा, जिसे हमें अंतर्वक्र और बहिर्वक्र, कॉन्केव आएगा तो बहिर्वक्र और कॉन्वेक्स आएगा तो अंतर्वक्र। वेल्डिंग के बिट्स इस तरीके से दिखाए जाए कॉन्केव टाइप के, और वेल्डिंग के बिट्स कॉन्वेक्स टाइप के दिखाई देते हैं, तो वो वहां पे आ जाएगा।
So these are the points are here. Also some points here. We'll see the illustration. अभी फ्लैट प्लस सिंगल वी बट वेल, अभी देखो ये वी ज्वाइंट दिखाया हुआ है और ये सिंबल दिखा है, ये वी का सिंबल है और ऊपर एक लाइन दिखाई दी। हमें ये बेसिक सिंबल्स भी पता है और ये लाइन का भी मतलब पता है कि वी वेल्डिंग कंप्लीट करना है, लेकिन ऊपर वेल्डिंग का पार्ट नहीं दिखना चाहिए। मतलब क्या है, वेल्डिंग हमारे सरफेस लेवल तक होनी चाहिए, नॉट टू ओवर वेल्ड जिसे हम बोलते हैं, वेल्डिंग ऊपर नहीं दिखना चाहिए। तो अगर वेल्डिंग ऊपर आ गई तो उसको ग्राइंडिंग करके या और किसी प्रोसेस से वो सरफेस के ऊपर लाके फिनिश वेल्ड बोलते हैं उसे। ओके, नाउ द सेकंड ड्राइंग दे आर शोइंग अस सिंगल वी की जगह इन्होंने डबल वी बताया कि दोनों बाजू वेल्डिंग मार के दिया हुआ है। अभी यहाँ पे जो बीड्स दिखा हुआ है वो बीड्स अंतर्वक्र दिखा है कि दोनों बाजू लास्ट में भी और फुल में आपको वेल्डिंग करके देना है, खाली वी भरना नहीं है, लेकिन दिस टाइप ऑफ रन विल बी कम्स ऑन देयर। सो द वी, नाउ दिस इज द फिलेट वेल्ड टी जॉइंट, लेकिन ज्वाइंट कैसा चाहिए, हमें कॉन्केव टाइप का चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से उसका वेल्डिंग आना चाहिए। तो ये ड्राइंग हमें बेसिक सिंबल्स में दिखाई दे रहे हैं। अभी इसमें देखो नंबर ऑफ सिंबल्स दे आर यूजिंग हियर, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिंबल्स इज नथिंग बट द फ्लैट प्लस सिंगल वी बट वेल विथ फ्लैट प्लस एंड बैकिंग रन। अभी हमने बेसिक सिंबल्स देख लिए थे, अभी बेसिक सिंबल्स देख लेते, मतलब ये वी का सिंबल्स है हमें पता है, ये ऊपर फिनिश वेल का सिंबल है ये हमें पता है, नीचे आधा सर्कल लेकर लाइन लिया मतलब बैकिंग रन मारना है और उसके भी वापस क्या करना है, फिनिश करना है। जब आप सिंबल्स पढ़ेंगे, जब आप सिंबल्स रीडिंग करना चालू करेंगे, दो चार बार हाथ से ड्राइंग निकालना चालू करेंगे, तब आपको पता हो जाएगा कि सिंबल्स क्या है। अभी ऐसे तीन चार सिंबल्स एक हाथ ड्राइंग में आ जाएगा, तब आदमी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि व्हाट इज दिस, व्हाट दे वांट टू शो अस, व्हाट दे वांट टू डू देयर, बट you our studies proper, so that time we will not confuse because we know the convex, we know the finishing, we know the alphabet, आगे alphabet पे आ जाएंगे कि what alphabet they are using for the finishing, what alphabet methods they are just want to apply there, that points will also come there. Okay, so this type of symbols are very important and how to read it is also important, because I'm just repeated this word because it's important, point is there. Now this is the drawing, very important फॉर सिमेट्रिकल वेल्ड्स। अभी यहाँ पे वी जॉइंट है और वी जॉइंट है, दोनों बाजू वेल्डिंग करनी है मुझे, तो ये सिंबल्स किस पे आया, ये हमारी एरो साइड आ गई है, ये हमारी का रेफरेंस लाइन आ गई, रेफरेंस लाइन के ऊपर सिंबल्स आ गए। अभी देखो डुअल रेफरेंस लाइन आ गई, मैंने बताया था डॉटेड लाइन आ जाएगी। अभी ये डॉटेड लाइन ऊपर भी आ सकती है और नीचे भी आ सकती है, ऑलरेडी आई टॉक विथ यू, लेकिन ध्यान में ये रखना कि सिंबल्स डॉटेड लाइन के ऊपर है क्या। अगर सिंबल्स डॉटेड लाइन के ऊपर है तो इसका सिंबल्स आपके किसी इसमें है, सॉरी सिंबल्स आपका किस रेफरेंस लाइन पे या डॉटेड लाइन पे वो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नाउ कीप इट दिस पॉइंट, नंबर ऑफ टाइम्स दिस क्वेश्चंस विल कम्स, इज अ सिंबल डॉटेड लाइन पे है या डुअल लाइन रेफरेंस लाइन पे, हाँ तो वो थोड़ा समझना। नाउ हियर आल्सो दे आर जस्ट गोइंग टू कंफ्यूज, अभी रेफरेंस लाइन कहाँ है, ये वो रेफरेंस लाइन के ऊपर सिंबल है, बस उन्होंने क्या किया हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि डॉटेड लाइन ऊपर ले ली और डॉटेड लाइन नीचे ले ली। तो ध्यान में रखना डॉटेड लाइन से हमारा कोई संबंध नहीं, संबंध हमारा उससे है कि बेसिक सिंबल शुड नॉट बी ऑन द डॉटेड लाइन। इफ डॉटेड लाइन इज देयर, if basic symbol on the dotted line, the welding will go other side, otherwise nothing to change. Okay, so keep it in mind. Now these are the drawings there, ये भी हमको एक ड्राइंग बताया हुआ है कि इस साइड में इस प्रकार से फिलेट वेल्ड है, ये दोनों बाजू वेल्डिंग करना है, ये बाजू में हमें वेल्डिंग नहीं करना है करके। अभी या ये हमारा बट वेल्ड है और ये वी वेल्ड है, आपको ये सादा प्लेट दिया हुआ है, यहाँ पे देखो कि ये वेल्ड क्या है और हमें जो वेल्डिंग करना है वो अंतर्वक्र होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए। यहाँ पे वेल्डिंग क्या है वो भी अंतर्वक्र होना चाहिए, ये दोनों बाजू आपको जॉइंट्स दिया हुआ है कि इस प्रकार से उस जॉब को वेल्डिंग हो जाना चाहिए। ओके, सो दिस विल कम्स इन आवर जॉब, so we should be able to read the drawing. अब ये सिंबल्स में
स्क्वायर बेड वेल बताया है, एक सिंगल भी बट वेल बताया हुआ है और उसको बैकिंग रन मारना बताया हुआ है, बरोबर। अभी ये देखो, ये एक उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है, तौर पे दिया हुआ है कि यहाँ पे वेल्डिंग कंप्लीट किया हुआ है। अभी ये जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हमें ड्राइंग जब आता है तो वो या तो इस टाइप से आ जाएगा या तो इस टाइप से आता है, सिंबॉलिकेशन जिसे हम बोलते हैं। तो सिंबॉलिकेशन इज इम्पोर्टेंट हियर। नाउ you just see here, this is the arrow line. In this arrow line, this is the butt joint because दोनों वर्टिकल लाइन है, आपको पता है, और उसको हमको वेल्डिंग करना है, बरोबर। दोनों बाजू में वेल्डिंग करना है क्योंकि रेफरेंस लाइन के नीचे भी सिंबल जा रहा है, रेफरेंस लाइन के ऊपर भी। सेकंड जॉइंट देखो, सेकंड में क्या बता रहा है, वो रेफरेंस लाइन के ऊपर एक सिंबल्स बता रहा है, वो डॉटेड लाइन पे है। डॉटेड लाइन पे इसलिए बता रहा है कि उसको बैक साइड में जाके चिपिंग रन मारना है, बैक चिप रन मारना है, और आपको सिंबल जो है वो वेल्डिंग जो करना है वो एरो साइड में आपको दे दिया है क्योंकि वो रेफरेंस लाइन के ऊपर है। तो इस तरीके से हमें वेल्डिंग इसको कंप्लीट करना है। सेकंड सिंबल में अगर आप देखोगे तो वेल्डिंग की जगह उन्होंने क्या किया हुआ है कि बेसिक सिंबल जो है वो डॉटेड लाइन पे दिया, तो वेल्डिंग विरुद्ध बाजू में जाके करना है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, क्या हाउ टू रीड द ड्राइंग एंड अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो इस प्रकार से उन्होंने हमें बहुत सी सारे ड्राइंग यहाँ पे बताई हुई है। आइदर दिस टाइप विल कम्स और आइदर दिस टाइप विल कम्स, यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि ये ड्राइंग हमें तो बहुत अच्छे से पढ़ने आ जाती है, लेकिन ये ड्राइंग हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। आइदर दिस और दिस, किस सिंबल्स कहाँ पे आ रहा है, किस प्रकार से आ रहा है, किस प्रकार से वेल्डिंग किया जा रहा है, बिकॉज यही हमें बहुत बार आने वाला है कि एरो लाइन, सिंबल्स, सिंबल्स, बेसिक सिंबल्स और सप्लीमेंट्री सिंबल, और सप्लीमेंट्री सिंबल्स कहाँ पे आ रहे हैं। ओके, सो दिस इज द ड्राइंग्स एंड दिस इज द रीडिंग पोजीशंस। नाउ अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इस ड्राइंग में। अगर देखते हैं एक एरो लाइन, रेफरेंस लाइंस एंड डॉटेड लाइन, बरोबर है, स्लैश लाइन जिस हमें बोलते हैं। अभी ये रेफरेंस लाइन के ऊपर दो वर्टिकल लाइन दी हुए है, दो वर्टिकल लाइन मतलब ये बेसिक सिंबल से स्क्वायर वेल्ड का, स्क्वायर बट जॉइंट का। ओके, यस मतलब साइज ऑफ वेल्ड, साइज कितनी चाहिए, और टो ऑफ वेल्ड को हम बोलते हैं साइज। 8 mm का वेल्डिंग आना चाहिए, 10 mm का जो साइज आ जाएगा, और लेंथ कितना लंबाई का वेल्डिंग करना है, तो वो पार्ट हमारा इंपॉर्टेंस है। ओके, तो वो पार्ट हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सेकंड सिंबल्स में थ्रोट कितना रखना है और वेल्डिंग कितना लंबाई करना है, तो या लेग लेंथ कितना रखना है, तो यही ड्राइंग से हमें वो बता रही है, एंड जेड, बरोबर, थ्रोट एंड it's a leg length part. So these are very important points because the size of weld and length of weld, number of times the welder also confused. See, I want to do this length welding or this size welding. अगर वो बेसिक सिंबल्स के आगे है, मतलब लेफ्ट साइड में नंबर है, तो वो नंबर साइज ऑफ वेल्ड बताएगा, और बेसिक सिंबल्स के अगर राइट हैंड साइड में कोई नंबर आ रहा है, 14, 20, 50, 60, वॉट एवर इट मे बी, तो वो लेंथ ऑफ वेल्ड बताएगा। तो ये ध्यान में रखना, क्योंकि यस और एल अक्षर का मतलब ये होता है कि बेसिक सिंबल्स के लेफ्ट में है नंबर्स और बेसिक सिंबल्स के राइट में नंबर, बिकॉज नंबर तो 50, 60 दोनों तरफ भी आ सकता है, 40, 30 भी आ सकता है। So that time we should not be the confused, because every time if the number is in the left side of the basic symbols, we will call as the size of the weld. If the number is the right side of the basic symbols, we will call as the length of the weld. Okay, I think all are understand this point very well. Now you just see here in the dimensioning point of view, it's a one drawing is here. Very small letters are there. Are you able or not able? I don't know as per the point of view, but they are just want to show us ki what type of V joint is there, butt joint is there, Y joint is there, then square butt joint is there, and then fillet weld is there, and then fillet weld is there. Now you just see here कितना लंबाई का यहाँ पे वेल्डिंग करना था, कितना लंबाई का साइज ऑफ वेल्ड हमें चाहिए था, ये सब वो ड्राइंग में हमें बता रहा है। ये ड्राइंग आपको देखनी है, तो इस तरीके से हमें ड्राइंग को पढ़ना चाहिए। देखना मतलब हाउ टू रीड दिस ड्राइंग एंड हाउ टू वेल्ड दिस ड्राइंग, हाउ टू जॉइन मेक एंड देन हाउ टू वेल्ड इट। ओके, तो वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, सो लेग लेंथ कितना होना चाहिए वगैरह।
दिस इज द लेग लेंथ, दे आर जस्ट शोइंग अस इन अ टी जॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो ये पॉइंट हमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वेल्डिंग करते समय देखने का। These are the welding positions, few points are there। अभी पोजीशन बदलती है तो बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। सबको पोजीशन पता है, नाउ आई विल नॉट गो मोर देयर, बट द पोजीशन कहाँ चेंज होती है वो मैं बता देता हूँ। अगर प्लेट पार्ट है तो बहुत इजी है, लेकिन सर्कुलर पार्ट आ जाता है, जब पाइप आ जाता है तो बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाता है कि व्हाट इज दिस पोजीशन, बिकॉज ये 1G आ रही है, 2G आ रही है, 5G आ रहा है, 6G आ रहा है, और पाइप वर्टिकल में कर रहा है तो 3G में कर रहा है क्या? 3G तो उसमें आने वाली नहीं है। तो ये हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम लोग ऊपर से नीचे जाना है, अपहिल करना है, या डाउन हिल करना है, मतलब नीचे आना है ऊपर से, या नीचे से ऊपर जाना है। सो व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस, व्हाट टाइप ऑफ प्रोसीजर आई वांट टू फॉलो टू कंप्लीट द जॉइंट। सो दिस थिंग्स आर दे आर जस्ट शोइंग अस द फ्लैट पोजीशन में मारना है वगैरह, बिकॉज वेल्डिंग तो हमें कंप्लीट करनी होती है, लेकिन सर्कुलर पोर्शन में जब ये पोजीशन आ जाती है तब हमें ये पॉइंट ध्यान में रखना है। पीए, पीबी, पीसी, पीडी। अभी पीए मतलब ए बी सी डी, इसका मतलब है हम लोगों को फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ओवरहेड, तो ये पोजीशन हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो इस तरीके से ये जॉब कंप्लीट किया जाएगा। सर्कुलर जॉब है, लेकिन एक्चुअल जब आप वेल्डिंग करोगे तब वेल्डिंग करते समय जैसा एरिया तैयार हो जाएगा वो कहीं फ्लैट पोजीशन में आ जाएगा, कहीं हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगा, कहीं वर्टिकल पोजीशन में भी आ जाएगा। So this area will be comes on that particular position, and that position we will call as a B, C, D, because when I will go to for the upper level, sometimes it will come like an incline also. So I will say as an incline position there. Understand point? So this is very important in the welding position here कि कैसा हार है। तो आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन देते समय या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ते समय यहाँ पोजीशन में कंफ्यूज नहीं होना है, बस उतना ही वो आपको बताना चाह रहे हैं आप ड्राइंग में। Now the frames, civil engineering, structures and buildings and bridges, mechanical engineering, energy generation and transfer और pressure vessels। अभी हर एक का अपना एक पार्ट्स होता है, हर एक की अपनी एक ब्रांच होती है, हर एक की अपनी एक साइड्स होती है। सिविल इंजीनियरिंग विल फॉलो द सिविल रूल्स, सिविल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स विल फॉलो द इलेक्ट्रिकल रूल्स, या इलेक्ट्रॉनिक्स विल फॉलो द इलेक्ट्रॉनिक्स rules and symbolic presentations. Sometimes same symbols be sometimes same symbols will also come there, but we will not confuse this symbols representation in fabrication field is for here. If same symbols is come there, the meaning of that symbols is different there because the field is different. So understand the point. Okay, now at the pressure vessel or shells or processing industries, this one is our important point. Pressure vessel, pressure vessels का जो भी कोई इंजीनियरिंग का जिस भी कंपनी में काम चलता है वो बिना सिंबॉलिक का चलता नहीं है, क्योंकि हर एक पार्ट को वेल्डिंग करते समय उसका ड्राइंग आ जाएगा, ड्राइंग के साथ में उसका सब सिंबल्स आ जाएगा, और वो ड्राइंग में अगर सिंबल्स कहीं क्लियर नहीं हो रहा है तो हमें बार बार वो ड्राइंग इंजीनियर से या जिसने ड्राइंग बनाई उससे हमें सॉल्व करने पड़ते हैं, क्योंकि वो तो 99% ठीक ठाक ही रहता है, लेकिन सपोज समवेयर वी आर कंफ्यूज व्हाट वी वांट टू डू देयर इज राइट और नॉट। Before going to, if you confuse, so you just clarify your doubts from your seniors or your engineers. एक बार वेल्डिंग हो जाएगा तो वो होने वाला नहीं है। So the before welding we can ask the supervisor, we can ask the engineers what as per my knowledge this is showing this or this is showing this is correct or not correct. So he will be clarify our doubts here. I think understand you this. Okay, thank you. Now second point we will just see as a tubular frames इन सी प्लेटफॉर्म्स। नंबर ऑफ टाइम्स जब हम लोग मरीन इंजीनियरिंग के काम में जाते हैं, शिपिंग में काम में जाते हैं, तो वहाँ पे हैलो पार्ट्स का बहुत उपयोग किया जाता है। अभी हैलो पार्ट्स का उपयोग किया जाता है मतलब क्या कि सॉलिड रॉड के जगह, प्लेट की जगह वो हैलो बनाते हैं और उसका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और वो स्ट्रक्चर के ऊपर वो पूरा पाइपलाइन या कुछ कवर कर लेते हैं। तो वहाँ पे ड्राइंग थोड़ा सा बदली हो जाता है, बिकॉज द हैलो एंड सॉलिड पार्ट्स आर शोइंग देयर, दिस इज द हैलो पार्ट्स और दिस इज द शोइंग पार्ट। और समटाइम्स इन द सिंबल्स में वो ये भी बताते हैं कि ये यहाँ पे बना लो, और वहाँ पे जाके वो कोई एरो आ जाएगा, वो एरो के ऊपर कोई सर्कल आ जाएगा आपके बेसिक एरो लाइन पे और रेफरेंस लाइन के ऊपर। तो वो हमें ये बताता है कि वेल्डिंग वहाँ पे करना है, बस यहाँ से आपको लेके जाना है। सो यू जस्ट
मेक इट हियर एंड पक्का वेल्डिंग वहां पे साइड पे करना है. सो दिस टाइप ऑफ सिंबल्स विल बी कम हियर. ओके, द पॉइंट इज देयर. नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंस हियर. मटेरियल्स क्या होना है, फंक्शंस ऑफ वेल्ड, स्टैटिस्टिक लोड्स, लोडिंग कंडीशन, फुल्ली लोडेड वेल्ड, वर्किंग एनवायरनमेंट, प्रिसिशन ऑफ द पार्ट्स, प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट, एंड ऑन साइट और जॉब शॉप वेल्डिंग. ये देखो मैंने ऑलरेडी ये पॉइंट हम पहले में डिटेल में डिस्कस कर चुके हुए हैं. लास्ट का एक पॉइंट ध्यान में रखो, ऑन साइट जॉब शॉप वेल्डिंग. ऑन साइट करना इसका मतलब है कि मैं पहले बताया, जब बड़े बड़े बॉयलर्स एंड वेसल्स एंड रिग्स बनाए जाते हैं तो वो very difficult to transport from the one place to the other place. So that time they just divided in a parts and final part they completed in a on site. इधर से 4-4, 5-5 पीस में लेके जाएंगे और वो वहां पे जोड़ेंगे. पीस खाली बना के रेडी रखेंगे, वहां पे बस फाइनल वेल्डिंग का काम रखेंगे. सो दिस इज कॉल्ड एज अ ऑन साइट. So the symbolic representation will come there. One flag will come on the your arrow and reference point के ऊपर. अगर वहां पे फ्लैग दिखाई दिया इसका मतलब पक्का ध्यान में रखना कि ये वेल्डिंग वहां होने वाला है, हमें यहाँ से इसको बस बना के लेके जाना हुआ है, फाइनल वहां पे करना हुआ है. सो द जॉब शॉप वेल्डिंग एंड ऑन साइट वेल्डिंग इज इंपॉर्टेंट पॉइंट ना, ध्यान में रखना. सो ऑन साइट एंड जॉब शॉप. सो द पॉइंट्स आर देयर. अभी ये देखो, ये ब्रिज का एक ड्राइंग हमें दिखाई दे रहा है. अभी ये ब्रिज का ड्राइंग है, ये हम एक जगह पे कंप्लीट करना बोलेगा तो वेरी डिफिकल्ट. वेरी डिफिकल्ट मीन्स व्हाट, बिकॉज ये नंबर ऑफ पार्ट्स यहाँ पे लगने वाले कि हमने एक पार्ट यहाँ बना लिया, एक पार्ट यहाँ पे बना लिया और यहाँ पे जाके पूरा हमें ज्वाइन करना है हुआ है. तो व्हाट आई विल डू हियर, small parts I will prepare, I will make in my workshop and bring it in a place where I want to fit, where I want to join. Because here ये पूरा बन जाएगा, ये मैं मेरे पूरा वर्कशॉप में बना लूंगा, लेकिन मेरे को मेरे वर्कशॉप से लेके यहाँ पे लाने को इसकी काफी दिक्कतें आएंगी ट्रांसपोर्टेशन में. बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन इज लिमिटेशन समवेयर. फिर एक ट्रक में आप कितना रख सकते हैं, एक जहाज में आप कितना रख सकते हैं. सो बेटर इज दिस, इफ यू जस्ट डिवाइड इन अ पार्ट्स एंड जॉइन ऑन द साइड, तो आपका ये पूरा ब्रिज बन जाएगा. तो पूरा ब्रिज में वर्कशॉप में नहीं बना सकता है, लेकिन उसके पार्ट्स बना के मैं वर्कशॉप में से लाके ऑन साइड में मैं उसको ज्वाइन कर सकता हूँ. अभी ये काफी हेवी थिकनेस है, यहाँ पे आपको आईबीएम दिखाई दे रहा है, चैनल दिखाई दे रहा है, इसको हमको वेल्डिंग करना है. तो ये जगह पे करना रहेगा तो मैं क्या करेगा, इसको बस ये सब पीस रेडी रहूंगा और यहाँ पे बस उसको असेंबल करूंगा और असेंबल एंड ज्वाइन करूंगा. सो दिस इज द वन स्केच हियर, बिकॉज इट्स तुम्हें पता है कि ये ब्रिज का काम चल रहा है और ब्रिज के ऊपर ये हमारा फैब्रिकेशन काम है और इसके ऊपर ये सारा लोड आ गया है. अभी इस पॉइंट में मैं आपको 2-3 पॉइंट कंसिडर कर दूंगा कि किस प्रकार का लोड आ रहा है. स्टैटिस्टिक लोड आ रहा है, फटीग लोड आ रहा है, इम्पैक्ट लोड आ रहा है. अभी इस ब्रिज से अगर इसमें से रोड ट्रांसपोर्ट है, अगर रेल ट्रांसपोर्ट है तो लोड डिफरेंट है. रोड ट्रांसपोर्ट पे आप एक आध बार कंटिन्यूस भी चल जाएगा, लेकिन रेल ट्रांसपोर्ट पे जाएगा तो हेवी लोड वो सर्टेन मिनट्स के लिए आएगा. वो 1 मिनट के लिए टन्स ऑफ लोड विल कम्स एंड देन आफ्टर फटीग टोटली. बट इन अ रोड इफ यू आर टू सेम पार्ट्स यूजिंग द लोड सबस्टेंस द स्टैटिस्टिक, वो 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा भी कंटिन्यू हो सकता है. सो द पॉइंट to weld this pieces, so what type of process I want to use and what process will give me the more strength to the material. Because in the ferrous material point of view, the arc welding I can use here, MIG welding I can use here, in GMAW plus core wires I can use here, SAW I can use here, because it's a heavy thickness. But which process will give me the more strength, ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ इससे मिलेगी, वो ध्यान में हमें रखना बहुत जरूरी. मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको बहुत जरूरी था कि यहाँ पे जब ड्राइंग लेते और ड्राइंग में जब हमारे सिंबॉलिक आ जाती है और एग्जैक्टली जब हम बनाते तो इस तरीके से हमें बनाना होता है. ये बनाने के बाद तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बना लेंगे करके, लेकिन जब इसके छोटे छोटे पार्ट में ड्राइंग आ जाएगी तो वेल्डर को ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए. बहुत बार हमने देखा हुआ है कि वेल्डर बस वेल्डिंग करने का काम जान लेता है, लेकिन वेल्डिंग का ड्राइंग पढ़ना नहीं जानता है, सिंबल पढ़ना नहीं जानता है. तो हमें सिंबल्स पढ़ना बहुत जरूरी है, हमें ड्राइंग पढ़ने को आना बहुत जरूरी है. जब हमें पढ़ना सीख लेंगे तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा. अगर वेल्डिंग टीचर्स है तो उनके लिए समझाना आसान हो जाएगा, क्योंकि वो अगर कंफ्यूज हो तो फिर बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें क्या देना है, और बच्चे अगर कंफ्यूज आएंगे तो फाइनल में या कहीं काम करते समय वो कंफ्यूज रहेंगे. सो माय पॉइंट इज दिस हियर ओनली,
कि आप लोग 2 बुक 4 बुक उसके पढ़ो और 2-3 टाइम पढ़ने के बाद पक्का आपके ध्यान में आ जाएगा। अगर आपको फिर भी डाउट्स है तो यू कैन आस्क योर experts, you can ask your friends, you can ask your teachers. हम भी ये सब समझ सकते हैं कि कहाँ से हमें ये समझना है करके। ओके, so now this is one point is here. अभी ये देखो यहाँ पे ये टोटली पाइपिंग दिखाया हुआ है। अभी ये हेलो पार्ट है, पाइपिंग दिखाया हुआ है, एंगल्स पार्ट है। इस टाइप का ड्राइंग जब आता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये पाइप बना लेते, छोटे छोटे एंगल के पीस लेके आते, ये बिल्कुल तैयार करके लेके आते और यहाँ आके हम ज्वाइन कर सकते, क्योंकि ये ऐसा हम बना के नहीं ला सकते, ये फ्रेम बना के नहीं ला सकते। तो ये फ्रेम जो रहता है वो छोटे पार्ट्स में हम पार्ट्स करके लेके आ सकते हैं और यहाँ पे हम लोग जोड़ सकते हैं, बिकॉज इट्स टोटली फैब्रिकेशन फील्ड। मैंने पहले ही बताया वेल्डिंग 70-80% जगह यूज होती है इंडस्ट्री में, कहीं पे भी जाओ वेल्डिंग के बिना काम होता ही नहीं है। अगर आप बोलेगे ये तो रास्ते का काम चल रहा था, ऊपर कैसा ब्रिज बनाना, तो वो वेल्डिंग का पार्ट ही है, वेल्डिंग के बिना वो कंप्लीट होने वाला नहीं है। वेल्डिंग के ऊपर ओवर ब्रिज बनाना है तो हमारा ही काम है फैब्रिकेशन वाला, तो हमें सीखना पड़ेगा, बिकॉज इससे टोटली दे आर यूजिंग द स्टील और पाइप्स, दे आर गोइंग टू यूज द मटेरियल। और यहाँ पे वेल्डिंग किस प्रकार से करनी है, संभाल के करनी है, बिकॉज नीचे से प्लेट्स सॉरी ट्रांसपोर्टेशन चालू है। सो व्हाट टाइप ऑफ safety precaution we want to follow there, that's also important point is here. Now we will see the only point of view this. अभी एक स्ट्रक्चरल ब्रिज का आपको दिखाई दिया है। अभी ये पूरा बनाना बोलेगा तो एक जगह पे नहीं होएगा, हम वर्कशॉप में से बना के लेके आ सकते हैं और यहाँ पे उसको असेंबल कर सकते हैं, बिकॉज ये छोटे मोटे पार्ट्स है, हम यहाँ पे उसको ला के यहाँ छोटा मोटा वेल्डिंग कर सकते हैं ऑन साइड पे, लेकिन बाकी जो काम है वो हमें खुद वर्कशॉप के बना के लेके आना पड़ेगा। ओके, सो द पॉइंट इज हियर, सो दिस आर आल्सो वन पार्ट हियर। पूरा ड्राइंग में दिया रहता है कि कैसा वेल्डिंग करना है, किस प्रकार का वेल्डिंग करना है, किस प्रकार का ज्वाइन आएगा, कितना वेल्डिंग आएगा, जो हमने सब सिंबल्स में अभी पढ़ लिया और टाइप्स ऑफ ज्वाइन में भी पढ़ लिया। बिकॉज टाइप्स ऑफ ज्वाइन पढ़ाना इसलिए इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पे अगर ड्राइंग देखेंगे तो क्या है, कई लैप ज्वाइन है, कई टी ज्वाइन है, कई कॉर्नर ज्वाइन है, कई वी ज्वाइन है, कई यू ज्वाइंट्स है। दिस आर द ज्वाइंट्स आर हियर। So the joints and symbols are very important. इसलिए मैंने यहाँ पे आपको आज का चैप्टर जब सिखाने को लिया तो मैं सिंबल्स क्यों पढ़ा, तो पहले ज्वाइंट्स पढ़ा दूं कि ज्वाइंट्स समझ में आ जाएंगे, तो वेरी इजी टू डाइजेस्ट द सिंबल्स, so points are there. Okay, so now the points are here. Already I have discussed with these points. This is the also one of the fabrication parts, how to join and how to weld the total metal pieces and particular pieces. Okay, EV thickness they are just showing us. You just see the drawings now here. हमारा वेल्डिंग किधर किधर चलता है और कहाँ का हमें सिंबॉलिक, क्योंकि ये व्हील बनाना था, कोई एक वेल्डर नहीं बना सकता है, इसका अलग अलग जगह पे पार्ट बन के आ जाएगा, तो ड्राइंग सिंबल हमें पढ़ने को आना चाहिए। तो यही वो पॉइंट हर जगह पे पॉइंट बता रहा है। अभी देखो यहाँ पे ये बॉयलर वेसल्स का मैंने आपको बता दिया था कि ये वेसल्स बनाई जा रही है, प्रेशर वेसल्स है, इसमें नंबर ऑफ नोजल्स है, नंबर ऑफ पॉइंट्स है, नंबर ऑफ जगह पे इसको गसेट्स लगे हुए है। अभी ये नोजल्स के ऊपर यहाँ पे ये नोजल दिया गया है, यहाँ पे इनलेट दिया गया, आउटलेट दिया गया, नंबर ऑफ इनसाइड पार्ट्स है, ये सब एक एक पार्ट तो हम यहाँ बना रहे हैं। इसके अंदर का अगर हम जाएंगे तो नंबर ऑफ पार्ट्स आर ज्वाइन देयर, स्मॉल पार्ट्स आर देयर, दे आर मेकिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड दे जस्ट हियर द बिट्स हियर आर वेल टैकिंग देयर डूइंग, सो पॉइंट इज हियर। ओके, सो नाउ पॉइंट इज हियर। ये वेल्डर यहाँ पे वेल्डिंग करके दिखा रहा है कि बॉयलर वेसल उसके अंदर ट्यूबिंग हो रही है, ट्यूबिंग को हम वेल्डिंग कर दे, बाहर तो दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर नंबर ऑफ वेल्डिंग्स हो रहा है। ओके, तो उसको वेल्डिंग में यहाँ सिंबॉलिक्स उसको देगा। ये पाइपलाइन है, पाइपलाइन वेल्डिंग करते समय हम जनरली एपीआई यूज करते, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड्स है, कोर्स है, एपीआई 110 वगैरह 4 जो लास्ट टाइम मैं बताया था, उस कोड के हिसाब से वो वेल्डिंग करेगा, कितना लंबा करेगा, फिर रुकेगा, फिर वेल्डिंग करेगा, फिर चेक करेगा। सो दिस standards you will be the follow there, nothing but the guidelines you will be the follow. So these points will becomes here. Welding process use, material types and code requirements and cost, functions of weld, statics, dynamic or loading conditions. So these points will comes. अभी आपका क्या हो रहा है, ड्राइंग बदल रहा है तो ये पॉइंट बदल रहे हैं, ये पॉइंट वही नहीं आ रहे। अगर आपको ध्यान में आ रहा है तो दिस पॉइंट्स आर रिपीटेड बट द 1-2 points are they are added because your part is going to change.
part is going to application point of going to change, material is going to change, so 1 point 2 point will be somewhere will be changing the places. So यहाँ पे material type, code of requirement, cost ये आ जाएगा, लेकिन loading condition different हो सकती है. Okay, so these are the joints. Already we are covered these points, how to join it. This is the butt joints, already covered with the points are here. Okay, now these are the drawings of the parts. आपको ये ड्राइंग में अभी ये मैं एग्जांपल दे दूं तो वी जॉइंट है, उसके ऊपर कॉन्वेक्स वेल्डिंग करना है, या ये फिलेट वेल्ड है, ये फिलेट वेल्ड है, उसको हमको वेल्डिंग से जोड़ना है, यहाँ पे आपका बट वेल्ड तैयार हो जाएगा, तो ये यहाँ पे ये हो जाएगा. ओके, सो दिस थिंग्स विल बी कम हियर. टी जॉइंट्स है तो टी जॉइंट में आपके लोड्स कैसे आ जाएंगे. ओके, सो दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स विल बी कम देयर. तो कॉर्नर जॉइंट में किस क्या आ जाएगा, या बट जॉइंट में आपके क्या क्या वेल्ड्स आ जाएंगे. ओके, सो ये वेल्डिंग में सारी चीज़ें हमें देखना बहुत ज़रूरी है. आई थिंक ऑल आर अंडरस्टैंड वेरी वेल द वेल्डिंग सिम्बॉल्स एंड वेल्डिंग जॉइंट्स ऑल्सो, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इम्पोर्टेंस है ईजी ऑल्सो. एक दो बार आप पढ़ लोगे तो आराम से इसमें हमें आइडिया आ जाती है, और सारी आइडिया भी क्लियर हो जाती है पढ़ने के बाद. लेकिन सिम्बॉल्स बहुत बार हम इतना ये नहीं करते कि क्या क्या है इसमें, और कौन सा स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें सिंबल देखना है. थोड़ा सा सिंबल्स का स्टैंडर्ड भी अलग अलग है थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी एज इट इज है. ओके, सो द पॉइंट्स आर देयर. सो नाउ द आवर लेक्चर is completed today's, like welding joints and